हैं कि वहाँ पर परमेश्वर का राज्य ऐसे बढ़ने लगा कि 4th सेंचुरी में वहाँ पे एक राजा था इजाना, उसने he accepted the Lord and Christianity became a very well accepted way of life. We see in the 4th century Christianity, the kingdom of God grew in Africa और लोगों के बीच में मसीहत एक सामान्य बात बन गया, मसीहत में जीना. Okay, अब फिर आगे एक और important चीज़ है. And sitting in his chariot he was reading Isaiah the prophet. और अपने रथ में बैठकर वो यशाया नबी की किताब पढ़ रहा था. Okay, again he's sitting in his chariot. वो अपने रथ में बैठा था. That talks about chariots were they were only given to people of high authority. वो ऊंचे अधिकार के लोगों को दिए जाते थे. Okay, normal people will travel in donkeys. सामान्य लोग गधों पर सवारी किया करते थे. Okay, all right, आगे चलते हैं हम लोग. तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, Then the Spirit said to Philip. Okay, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले? किसने फिलिपुस को कहा था जब वो समरिया में था? स्वर्गदूत ने कहा. अब कौन कह रहा है? अब आत्मा कह रहा है. यानी फिलिपुस डिफरेंशिएट कर सकता है जब स्वर्गदूत ने बात करी और जब आत्मा ने बात करी. So before this we saw an angel spoke to Philip, but now we see the Spirit said to Philip. So Philip is able to discern between when the angel is speaking and when the Spirit is saying. Why? Because Philip is the one who would have told this to Luke. क्योंकि फिलिप ही है जिसने लूका को ये बात बताई होगी. Okay, क्योंकि लूका कह रहा है मैंने केयरफुल ऑब्जर्व करके लिखा है मैंने ये नैरेटिव. Because Luke is saying I have. So फिलिप को पता था जब स्वर्गदूत ने मुझसे बोला, अब फिर बाद में उसको पता था जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला. So Philip would have told him when the Holy Spirit spoke to me or when the angel spoke to me. Lisa B, if the eunuch was a non-Jew, was it maybe he was converted. Some people say he was a proselyte. Proselyte means that he accepted Judaism, but there is no clear message or signal from the Bible that he was a Jew. I don't think he was a Jew. शायद वो proselyte हो सकता है. क्योंकि अगर वो Jew होता तो उसको पता होता आइज़ाया की बुक के बारे में. Because if he was a Jew, he would have known about the book of Isaiah. Okay, मगर उसको नहीं पता था. आगे हम देखते हैं. We'll see. All right. आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले. Then the Spirit said to him, go near and overtake the chariot. फिलिप उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना. So Philip ran to him and heard him reading the prophet और Isaiah. पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? And said, do you understand what you are reading? Okay. Now, सबसे important बात, Philip heard him reading the prophet Isaiah. फिलिप ने उसको सुना यशाया की किताब पढ़ते हुए. पुराने टाइम में एक बहुत अच्छी आदत थी जो शायद अब पढ़ने वाले लोगों में नहीं है. They used to read out loud. In the olden times there was a good habit that many people don't follow now. वो ऊंचे शब्दों में बोल के पढ़ा करते थे. कैसे फिलिप सुन रहा है कि यशाया की पुस्तक पढ़ रहा है? How can Philip hear that he is reading the book of Isaiah? All right, let me just open the book of Isaiah. Okay, and now Philip is reading the book of Isaiah. Okay, sorry, eunuch. All right, so okay, so eunuch पढ़ रहा है अपने chariot में पढ़ रहा है. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as the sheep before. वो इतना loud पढ़ रहा है अपने रथ में कि फिलिप जो उसके बगल में, अब उसको सुनाई दे रहा है कि ये बंदा क्या बोल रहा है. He was reading out so loud that Philip could hear what is he speaking. Okay, all right. Okay. कोई बोल रहा है वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, तो अपना मन जहाँ लगा है उससे हटाओ और वचन में लगा दो, फिर लगने लग जाएगा मन. All right, I'm just kidding. So, Philip asked him, "Do you understand what you're reading?" फिलिप ने उसको पूछा, समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हो? इसीलिए तो आपको सिखा रहे हैं बहन कि आपका मन लगे वचन में. That's why we are teaching you so your heart can be in the Okay, इसीलिए हम रोज आ रहे हैं लाइव कि लोगों का मन लग सके. That's why we are coming live every day so people's heart can be in the word. Okay, amen. So, do you understand what you are reading? तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? So Philip asks him, do you understand what you're reading? Okay. So, अलाउड रीड करने के बहुत बेनिफिट्स हैं, पर ये एक दूसरा सरमन है कभी और के लिए, क्योंकि फिर मैं आगे नहीं जा पाऊंगा. There are many benefits of reading out loud, but this is a sermon for another. फिलिप को इवेंजलिस्ट कहा गया है. इवेंजलिस्ट. Philip was called an evangelist. यहाँ से मैं आपको इवेंजलिज्म 101 की एक क्लास देता हूँ.
From here, I'll give you evangelism क्योंकि 101 मेरी class. मिनिस्ट्री शुरू हुई एज एन इवेंजलिस्ट. Because my ministry began as an evangelist. कई लोग हैं आज जो सुसमाचार प्रचार करना तो चाहते हैं मगर सुनना नहीं चाहते दूसरा बंदा जो बोल रहा है. Today, many people want to preach the gospel, but they don't want to hear what the other person wants to Okay, say. true evangelism begins by not just proclaiming, it's very important, but also listening and discerning. सच्चा सुसमाचार सिर्फ सुसमाचार सुनाने से नहीं, लेकिन सुनने और परखने से होता है. Okay, Philip is not going there as a lecturer. फिलिप वहां पर लेक्चर देने नहीं फिलिप जा रहा. ध्यान से सुनता है ये बंदा क्या बोल रहा है. He hears carefully what This man is a saying. master class. Philip is giving us a master class how to share the gospel. फिलिप हमें मास्टर क्लास दे रहा है कैसे सुसमाचार सुनाना है. Start with where people are, जहां लोग हैं वहां से not शुरुआत where you करो. want them to be. वहां से नहीं जहां आप चाहते हो लोग कई लोग आए. बोलते हैं जो उनको बोलना है बोलने दो, तुम बस ये बोल दो. No, no, no. Some You have people to. say, Okay. let them say whatever they want to say, you just say this. Listen to their questions. Listen to their heart. उनके सवाल सुनो, उनके दिल को सुनो. फिलिपुस ने सुना Philip heard कि ये यशाया पुस्तक पढ़ रहा है. that he is reading the book of अब वो क्या Isaiah. कर रहा है, उसने उससे क्वेश्चन पूछा. Now what he तू did, he जो asked पढ़ him a रहा question. है तुझे क्या समझ में आ रहा है? What you're reading, do you even understand? Wow, that's the way he starts to preach the gospel. इस तरीके से वो सुसमाचार का प्रचार करता है. Okay, so Philip the evangelist starts to preach the gospel through asking a question. फिलिप जो सुसमाचार का प्रचारक है, सुसमाचार प्रचार करना शुरू करता है एक सवाल पूछ के. Okay, और इतने सारी अपॉर्चुनिटी परमेश्वर आपको देगा सुसमाचार प्रचार करने की. And God will give you so many opportunities to preach the gospel. If you will just hear what people are saying. अगर आप सिर्फ सुनोगे कि लोग क्या कह रहे हैं. Okay, तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है. Do you understand what you're hearing? Okay, What's your 31st. He said, that means that eunuch said, how can I unless someone guides me? And asked Philip to come up and sit with him. उसने उस खोज ने कहा कि मैं कैसे समझूं जब तक मुझे कोई समझाता है नहीं, और उसने फिलिप से कहा कि आ और मेरे साथ रथ पर बैठ. Oh man, I'm so impressed with this eunuch. मैं इतना इम्प्रेस हूँ इस यूनक से. He revealed such profound humility. उसने He revealed such profound humility. उसने ऐसी नम्रता झलकाई है यहाँ पे. Okay, कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता There are some people who don't मगर know वो इतनी anything, बकबक करते हैं और वो सुनते नहीं है किसी की. but they speak so much and don't listen to This anyone. man is of great stature. ये आदमी बड़े अधिकार का आदमी है. He holds the entire money of Ethiopia. वो इथियोपिया का सारा पैसा अपने वश में रखता है. Okay, और जब फिलिप उससे पूछा तू जो पढ़ रहा है तुझे समझ में आ रहा है? And when Philip questions him, do you understand what वो you're कह रहा reading? है जब तक मुझे कोई ना समझाए. Man, I'm so blessed whenever I see and I hear humble people. He says, unless someone teach me or explain to me, मैं बहुत blessed होता हूँ जब मैं नम्र लोगों को देखता हूँ. Okay, नम्र जो है ना, इसीलिए man, नम्र लोगों के ऊपर परमेश्वर उंडेल देता है अपने अनुग्रह को. That's why God pours out His grace upon the humble. मगर जो घमंडी है ना, बाइबल कहते हैं परमेश्वर उनका विरोध करता है. But the Bible says God resists the हम proud. लोग जब जल्दी से ऐसे बाइबल पढ़ देंगे तो आप शायद ये मिस कर दोगे. When we quickly read this, you might miss this. But look at the intense humility of this man of great stature. पर इस महान अधिकार के आदमी के दिल की नम्रता को देखो. Okay, he admits his limitation. वो वो अपनी- मान रहा है, वो कह रहा है भाई मुझे नहीं आता. जब तक कोई मुझे नहीं समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ? वो अपनी सीमा को पहचानता है. He says, if unless someone explains to me, how can I understand? Okay, उसके बाद what does he do is he invites Philip कि आ मेरे साथ बैठ. Then he invites Philip to come and sit with him. You know, this shows his eagerness to learn. That's why I said he was a very good human being. ये दर्शाता है वो सीखने के लिए इच्छुक है. ये दर्शाता है वो उसका कितना हृदय. अच्छा व्यक्ति है. इसीलिए मैं आपके कई लोग कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा मेरा हृदय सही है. नम्रता एक बहुत अच्छा साइन है हेल्दी हार्ट का. Some people will say, how do I know if my heart is good? Humility is a very good sign of a healthy heart. ओके, एक नम्र जो हृदय है वो एक हेल्दी हृदय है. A और humble घमंड heart. से भरा हुआ जो एक हृदय है वो एक बिटरनेस से भरा हुआ हृदय है. A humble heart is a healthy heart, and a proud heart is a heart filled with bitterness. ओके, नाउ इससे हमें एक और चीज समझ में आती है. ओके, व्हाइल वी अंडरस्टैंड दैट होली स्पिरिट इज द illuminator of scripture, is the teacher of scripture, From this we know कि पवित्र आत्मा वचन को प्रकाश डालने वाला है. but he always will also teach people through men. लेकिन वो स्वयं हमेशा लोगों के द्वारा सिखाता है. ओके, खुद के साथ भी और लोगों के साथ भी. So मतलब वो
जो व्यक्ति ये कहता है ना मैं केवल पवित्र आत्मा से सीखता हूं, वो एक घमंडी आदमी है, वो किसी से नहीं सीखता। Anyone who अगर says, आप इंसानों से नहीं सीख सकते और आप कहते हो मैं केवल खुदा से सीखता हूं, तो वो घमंड है, वो कोई उसमें गॉडलीनेस नहीं है, वो घमंड बात कर रहा है, वो परमेश्वर बात नहीं कर रहा। anyone who says, I only learn from God, I only learn from Holy Spirit, I don't learn from any man, is just pride talking. If you say like that, you're a prideful person. There is no humility in saying that. Anyone who is humble will learn from people. ओके आप बचपन से अभी तक देखो, जब आप पैदा हुए थे आपके माँ बाप ने आपको वचन बोलना सिखाया, खाना खाना सिखाया, उसके बाद आप स्कूल गए, आपके टीचर्स ने आपको ABC सिखाई, फिर आप दूसरी क्लास में गए, वहाँ पे आपको टीचर्स मिले, आपको किसी टीचर ने स्पोर्ट्स खेलना सिखाया, किसी दोस्त ने कुछ और सिखाया। सीखते हुए हमने हमेशा एक दूसरे से सीखा है Right और from- अंत तक सीखते रहेंगे। Right from the moment we were born, our parents taught us things, our teachers, our friends. We have always learned from others until our last breath. We'll keep learning from others. Okay, so all right, so you should understand that when we approach Bible with humility, it's a sign of wisdom, not a sign of weakness. जब हम नम्रता के साथ बाइबल के पास आते हैं तो वो नम्रता का चिन्ह है, वो ताकत का चिन्ह है, कमजोरी का नहीं। Okay, all right, okay. All right, so it's not a sign of weakness to admit that I don't know everything and I'm still learning. So एक कमजोरी नहीं है कहना कि मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और जब आपको नहीं पता तो आप जाओ उन लोगों के पास, अपने पास्टर्स के पास, उन अगुओं के पास जो परमेश्वर ने रखे हैं, And when you don't and know, आप सीखो। when you don't know, go to your pastors, your leaders, the people God has ordained over you, and learn from them. Okay, आगे चलते हैं। The place in the scripture where he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away. And who will declare his generation? For his life is taken from the earth. पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वह भेड़ के समान वध होने पहुंच गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कुतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता और उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। Isn't that awesome? There are no coincidences in the Bible. क्या ये हैरानी की बात नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है बाइबल के अनुसार। जब पवित्र आत्मा ने फिलिप को बोला कि इस रथ के पास जा, इस समय वो जो खोजा है वो यशाया पढ़ रहा है और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणी है वो पढ़ रहा है। So when the Holy Spirit told Philip to go near that chariot, this eunuch is reading Isaiah and he is reading the prophecy that is about the Lord Jesus. Okay, और वो दर्शाता है उसका लैम्ब, वो जो मेमना था और वो हम सब के लिए वध होने के लिए गया। And this shows the lamb that went as a sacrifice for all of us. Okay, so it's just a quotation from Isaiah 53:7 onwards. ये शायद 53:7 से ये पंक्तियां हैं। Okay, आगे so the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यवाणी यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। Okay, अब एक बात ध्यान से सुनो यहाँ पे, Now hear इसका carefully. मतलब खोजा जो है ना उसको बिल्कुल नहीं पता है यीशु के बारे में, पहली बार वो सुसमाचार सुनेगा। That means this eunuch has no idea about Jesus. This is the first time he's going to hear the gospel. पहली बार वो सुसमाचार सुनेगा। The first time he'll hear the gospel. वो कह रहा है किसके बारे में बोल रहा है ये, शायद He's उसको नहीं पता। asking, who is Isaiah talking about? Okay, then Philip opened his mouth तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला and beginning at this scripture preached Jesus to him. और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। Okay, अब फिलिप क्या प्रचार कर रहा है? Now what is Philip preaching? He is preaching Jesus. वो यीशु का प्रचार कर रहा है। Okay, ये बेस्ट अगेन जैसे मैंने कहा था, फिलिप is teaching us evangelism's master class. फिलिप हमें इवेंजलिज्म की मास्टर क्लास दे रहे हैं। Okay, first जो इवेंजलिज्म करना चाहते हैं, जिनका डिजायर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, Anyone who wants to do evangelism, start with where people are, जहाँ लोग हैं वहाँ से शुरुआत करो। use their questions, उनके सवालों का their इस्तेमाल करो, background,
वो किस their जगह से आए। doubts as a starting point, उनके संदेह इस्तेमाल करो and then connect the dots और फिर इन सब बातों को जोड़ दो and lead them to Jesus. और उन्हें प्रभु यीशु की ओर केंद्रित करो। Okay? आपका काम है लोगों को बताना, आपके जो सवाल हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, जो भी है, वो उसका जो उत्तर है वो यीशु मसीह है। Your job is to tell the people that all the questions, all the doubts, anything that you have, the answer to all of that is the Lord Jesus. You have to tell people what the thing that you've been looking for all your life is Jesus. आपको लोगों को ये बताना है कि जिसको तुम जिंदगी भर खोजते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है। Okay? फिलिप ने क्या प्रचार किया? What did Philip preach? यीशु। Jesus. कई लोग सुसमाचार प्रचार पैसे कैसे करते हैं? पहले तुम पापी हो, Some people preach. तुम नरक जाओगे। Some people preach the gospel saying you are sinners, you will go to hell. Is that the way Philip preached? क्या फिलिप ने ऐसे प्रचार किया? No. नहीं। He first hears what this man has to say वो पहले सुनता ही आदमी क्या and है then preach Jesus to him. तब उसको यीशु का प्रचार किया। Okay? Do we tell people to turn from sins? Absolutely yes. क्या हम लोगों से कहते हैं पापों से मुड़ने के लिए? बिल्कुल। But don't sin, is that the preaching of Jesus? No. पाप मत करो क्या ये यीशु का प्रचार है? नहीं। Preach Jesus. यीशु का प्रचार करो। Preach what Jesus did. जो यीशु ने किया Tell उसका people प्रचार करो। about Jesus. लोगों को यीशु के बारे में बताओ। First hear where they are. पहले सुनो वो कहाँ हैं। सुनो वो क्या कह रहे हैं, Hear what they're saying. उनका जो दुख है, उनका their pains जहां वो है, their and then sorrows. tell them there is a deliverer, there is a healer, there is a redeemer who already paid the price and his name is Jesus. वो कहाँ है पहले सुनो और फिर उनको बताओ एक छुटकारा देने वाला, एक उद्धार करता एक प्रभु है जिसने सारा दाम चुका दिया, उसका नाम यीशु है। Okay, all right. फिर हम अब आगे चलते हैं। Okay, oh, it's almost 9. Okay, so he preached Jesus. तो उसने यीशु का प्रचार किया। अब ध्यान से सुनना एक चीज, आपको बहुत मजा आने वाला है। उसने क्या प्रचार किया? Say What did he Jesus. preach about? Jesus. Okay, he preached Jesus. He preached Jesus. Now, 36. मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? Now as they went down the road they came to some water and the eunuch said, see, here is water, what hinders me from being baptized? Okay. अभी हमने क्या सीखा? What did we ये learn? खोजा जो है ये यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहा है। कब सुन रहा है? पहली बार। This eunuch is hearing about Christ the very first time. पहली बार। और मुझे जो हैरान करती है बात, फिलिप ने उसको नहीं कहा देख यहाँ पानी है तुझे बपतिस्मा दे देते हैं। खोजा कह रहा है देख यहाँ पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक सकता है? And what surprises me is Philip did not tell him, let me baptize you, there is some water here, but this eunuch is saying, oh, here is water, what hinders me from being baptized? Okay, now हमने इससे पहले आयत में क्या पढ़ा था? What did Philip preach to him? फिलिप He ने क्या preached प्रचार किया था? Jesus. यीशु का प्रचार किया। मेरा क्वेश्चन ये है, My question जब is- फिलिप ने यीशु के बारे में प्रचार किया तो यूनक जो खोजा है वो अभी बपतिस्मे की बात कहां से ला रहा है? My question is, when Philip preached Christ, why is this eunuch talking about baptism? बैप्टिज्म कहां से आ गया? Where did इसको baptism come बैप्टिज्म का प्रकाशन किसने दिया? from? Who gave him the revelation of That baptism? means इसका मतलब the है preaching of Jesus includes baptism. यीशु का प्रचार करने में बपतिस्मा शामिल है। Okay? Hear this. The eunuch's immediate recognition as an opportunity for baptism जो यूनक ने उसी समय पहचान लिया कि उसको आवश्यकता है बपतिस्मे की। that means Philip should have explained him the entire gospel, इसका मतलब फिलिप उसने उसको पूरा सुसमाचार समझाया होगा, including Jesus's command to be baptized. जिसमें यीशु की वो आज्ञा शामिल है कि बपतिस्मा दो उन्हें। Okay? So early church में, In the early in the early church, church, preaching Jesus included यीशु के प्रचार में शामिल the था clear preaching of who Jesus is, स्पष्ट प्रचार के यीशु कौन है, why did he come, वो क्यों आया, the call to repentance, मन फिराने की जो बुलाहट and है then उसके to लिए, be baptized. और बपतिस्मा लेने की बुलाहट। That means Philip clearly preached the gospel. और ये ऐसा नहीं था हाँ यीशु पे प्रचार करो बढ़िया है देख लेना फिर अगर मन करे कभी तो संडे को चर्च आ जाना. That is the way so many people share about Jesus today. फिलिपस ने साफ प्रचार किया, आज की तरह नहीं, बहुत से लोग आज ऐसे प्रचार करते हैं, या सो बिलीव इन जीसस इफ यू वांट टू एंड सी इफ यू फील लाइक कमिंग टू चर्च ऑन संडे देन यू कैन.
यानी फिलिप ने जो प्रचार किया था उसमें उसने सिखाया कि बैप्टिज्म ऑप्शनल पार्ट नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गॉस्पेल एंड इट रिक्वायर्स your instantaneous obedience. So that means when Philip preached the gospel, he taught him baptism is not optional. जब तुम विश्वास करो तो उसमें उसी समय आज्ञाकारिता की आवश्यकता है बपतिस्मा लगे. क्योंकि वरना सोचिए क्यों यूनुक कहेगा जिसको कुछ नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, देख यहाँ पानी है, देख यहाँ पानी है, मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ, मैं पानी फिलिप मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? Otherwise, why would the eunuch even say, "Oh, look, there is water here now. I can be baptized. Who can stop me from being baptized?" That means Philip preached the entire gospel which apostles were preaching, which is the clear message of Jesus, that he came as a lamb of God. He took our sins on himself. When we believe in him, we confess with our mouth he's our Lord and Savior. He was died, buried, resurrected, and then we a call for repentance. I'm going to make him my Lord and Savior, and then I'm going to obey him by baptism. फिलिपस ने पूरा सुसमाचार उसको सुनाया प्रभु यीशु मसीह के बारे में. वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, पुनरुत्थानित हुआ, और अब जो कोई वो आज्ञा मानेगा, उसको विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाता है. Okay. खोजे the eagerness of eunuch. उस खोजे की जो उत्सुकता थी, वो उत्सुकता ये दिखाती है कि फिलिप ने उसको सिखाया था बपतिस्मा कितना जरूरी है और सुसमाचार का एक अहम हिस्सा है. The eagerness of the eunuch to be baptized reflects that Philip taught him that baptism is important and it is a part of the gospel. Okay. अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? Now what can stop me from being baptized? Thank God Philip was not like so many pastors today. प्रभु का धन्यवाद हो, फिलिप आज के बहुत से पास्टर्स की तरह नहीं है. वो कहता भाई अभी तो पहली बार तेरे को बताया है, Otherwise he would have said, अब तुझे कैसे बपतिस्मा? एक काम कर, अगले साल जब तू आएगा यरूशलेम तब तक हम तेरी लाइफ देखेंगे. How can I baptize you next year when you अगर come to नेक्स्ट ईयर Jerusalem? तक तू व्यभिचार नहीं कर रहा है, तू बीड़ी नहीं पी रहा है, तू सिगरेट नहीं पी रहा है, तू गुटखा नहीं खा रहा है, तू तंबाकू नहीं खा रहा है, तब देखते हैं. Or if you're not living in 6 adultery, क्लासेस पहले तुझे आना है बैप्टिज्म की लेने के लिए. if you don't have any मेंबरशिप addictions, लेनी है कलीसिया की, टायद देनी है 6 महीने तक. so you have to come for 6 classes of baptism, take church membership and give tithe in church, then we'll see your life and then decide to baptize you or not. ओके. वो कह रहा है कि मुझे बपतिस्मा लेने से अब क्या रोक है? He is saying, what can hinder me from being baptized? Now hear this. सुनिए. Then Philip said, तब and फिलिप as ने I कहा, said, thank God that he is not like today's pastor. और जैसा मैंने कहा कि धन्यवाद प्रभु के वो आज के पास्टर्स की तरह नहीं है. Then Philip said, फिर फिलिप ने if कहा, you believe with all your heart, you may. यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है. यदि खोजे के लिए वो कह रहा है, यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है खोजा तो तू बपतिस्मा ले सकता है. हालेलुया. He said, if you believe with all your heart, then you can be baptized. Okay, now hear this. And he answered, खोजे ने उत्तर दिया और कहा, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Hallelujah. खोजे ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. Okay, मैं विश्वास कर, वो कह रहा अगर तू पूरे दिल से विश्वास करता है, खोजा कह रहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ पूरे दिल से कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है. He said, if you believe with all your heart, he said, yes, I believe that Jesus is the Son of God. There is one condition that Philip gave him. एक ही शर्त है जो फिलिप ने उसको दी. जो शर्त प्रेरितों के कार्य में थी बपतिस्मे की, वही शर्त आज भी है, बदली नहीं है. Amen. The same condition that applied in the book of Acts for one to be baptized is the same condition that आज applies पास्टरों ने today. It does not 10,000 change. कंडीशन और लगा दिए बपतिस्मे में, Pastors have added जो बाइबल में खुदा ने नहीं दिए हमें. Pastors have added 10,000 more conditions for baptism which God has not given to us in the word. Okay, now when जब हम लोग को कहते हैं कि तू सारी बुरी आदतों को छोड़ के आ तब तू बपतिस्मा लेना, that's the perversion of gospel. When we tell people first you go and leave all your addictions, all the bad habits, then come to take baptism, ये सुसमाचार को भ्रष्ट करना है. Okay, it's a similar to modern day Judaizing the gospel. ये आज के समय में सुसमाचार को यहूदियों के धर्म की तरह बनाना है. 15वें एक्ट्स में हम देखते हैं कि कई लोग बोलने लग गए विश्वासियों को कि तुम विश्वासी तो हो पर तुम्हें खतना भी करना पड़ेगा. मूसा ने जो खतना कराया था तभी तुम बचाए जाओगे.
We see in Acts 15 that there were some people, some Jews that became believers and said, you have to believe in Jesus, but you also have to be circumcised, like Moses said. And only then you can we be saved. saw that the council in Jerusalem, the council of apostles, they condemned it and they said no. और हमने देखा कि जो प्रेरित थे यरूशलेम में, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है. Okay, it's the faith in Lord Jesus Christ that makes a man righteous. प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से एक व्यक्ति धर्मी बनता है. Okay, और ये क्यों होता है? आज ध्यान से सुनिए, जिन लोगों को आज तक समझ में नहीं आया, आज के बाद आपको समझ में आएगा. And I'll tell you why Because this many happens. pastors confuse justification with sanctification. क्योंकि बहुत से पास्टर्स धर्मी ठहराए जाना और पवित्र किए जाने को मिक्स कर देते हैं आपस में. Both are two different things. दोनों अलग बातें हैं. Okay, legalistic teaching fundamentally misunderstands what baptism is. जो लीगलिस्टिक टीचिंग्स होती हैं वो गलत समझते हैं बपतिस्मा क्या है इसको. It treats baptism as a reward for achieving holiness rather than the justification which is by grace. वो बपतिस्मे को ऐसा दर्शाते हैं कि बपतिस्मा प्रतिफल है एक पवित्र जिंदगी जीने का, ना कि प्रतिफल है धर्मी ठहराए जाने का. Baptism is about identification, not perfection. बपतिस्मा पहचान का चिन्ह है, सिद्ध जब बनने एक का व्यक्ति चिन्ह नहीं. पानी के अंदर जा रहा है, वो ये नहीं कह रहा है अब मैं सिद्ध हूं, मेरे से कोई गलती नहीं होगी आज के बाद, मैं एकदम पवित्र हो गया हूं. नहीं, वो पानी के अंदर जाके ये कह रहा है मेरा पुराना मनुष्य तो मर गया, अब मैं मसीह के साथ एक हो गया हूं. Amen. When someone goes under the water in baptism, they are not saying that I have become perfect after today, I will never ever make a mistake again. No, they are saying I have died, I have become one with Christ. Okay? रोमन्स 6 में हमें बताता है जिसने बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया है. In Romans 6, Bible tells us he who is baptized has put on Christ. Okay? Hear this. सुनिए, Baptism was the beginning of Christian life. It was not the graduation ceremony. बपतिस्मा मसीह जीवन की शुरुआत है, ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं है. Okay? ये ऐसा है कि एक फौजी स्टार्टिंग में आ रहा है और एक फौजी को स्टार्टिंग में हम बोल रहे हैं, हम उससे वो मांग कर रहे हैं जो प्रोसेस के बाद 5 साल की 3 साल की ट्रेनिंग के बाद, अरे वो गुटखा भी छोड़ेगा, वो सिगरेट भी छोड़ेगा, वो व्यभिचार भी छोड़ेगा, वो सब परमेश्वर उससे पवित्रता इसमें लेकर जाएगा परमेश्वर उसको, पर उसको राज्य में आने तो दो. हम वो ठेकेदार नहीं, हम वो पुलिस वाले और हवलदार नहीं जो हम लोगों को आज माप सके और कहे तू लायक है, तू बपतिस्मा ले. नहीं, तू लायक नहीं है. परमेश्वर हमें कहेगा तू भी मेरे अनुग्रह के कारण लायक है. तो जब हम अनुग्रह से बचाए गए हैं और जब अनुग्रह की वजह से ही हमारा उद्धार हुआ है, तो वही अनुग्रह सबके लिए भी है. Amen. So we are not the judge or the police today to judge people and say you are worthy of the baptism and you are unworthy of the baptism, because God will say even you became worthy because of my grace. There is no one who can do it on their own but by the grace of God. Okay? बाइबल बताती है 3000 प्रेरितों के कार्य 2 दूसरे अध्याय में 3000 ने यीशु मसीह को ग्रहण किया. क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि 3000 के 3000 बिल्कुल पवित्र जीवन जी रहे थे? In Acts 2, the Bible says 3,000 were saved and were baptized immediately. But are you telling me that the 3,000 were living a perfect life? अरे 3000 में 10 तो होते जो गुटखा खा रहे थे, जो तंबाकू खा रहे थे, जिनको प्रेरित कहते नहीं भाई तुम्हें नहीं देंगे. मगर वही सवाल फिलिप ने उससे ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि वो अपोस्टल्स के साथ रहा है, वो जानता है प्रेरित लोग क्या सवाल पूछते हैं. क्या सवाल है जब कोई बपतिस्मा लेने आए जो यीशु को पूरी तरह से दिल दे चुका है, यीशु के पीछे चला, क्या तू पूरे मन से विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर? वो व्यक्ति कहता है हाँ, मैं अपने संपूर्ण दिल से मानता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, मैं उसके पीछे चलना.